Low productivity is killing you. It is taking away your dreams, it is taking away your time, and it is making us lifeless. What can we do about it? Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. Let's get started. Low productivity की main problem क्या है? What is its main manifestation? First, we are wasting our complete day. We are spending hours and hours on the phone or any other unproductive activity. We have a messed up sleep cycle. कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं. There is no concrete plan, and at the end of every day, there is guilt. But the problem is, there is no fix. You will repeat the same pattern of behavior again because there is no concrete way to come out of it. In this video, I'll try to provide you a solution. पहले बात करते हैं why do we have low productivity. This is a poll that I conducted on my Telegram channel, and these were the results. Out of 21,000 people, there were only 14% who said they were not facing low productivity. So firstly, this is not only your problem. अब इसके reasons क्या थे? कुछ है main results. ठीक है, this is still acceptable because I can completely understand the anxiety that comes in your main results. मुझे भी थी. But ये सिर्फ 10% लोग हैं. जो बचे हुए लोग हैं वो है कि प्रीलिम्स बहुत दूर है एंड इन जनरल द टाइम ऑफ द ईयर इज सच. बट क्या सही में ये रीजंस हैं? क्या सही में प्रीलिम्स बहुत दूर है? इसकी बात करेंगे. इन जनरल द टाइम ऑफ द ईयर इज सच कि हमें लो प्रोडक्टिविटी फेस करनी पड़ती है. ऐसा क्या है इस टाइम ऑफ द ईयर में? फर्स्टली, इन नवंबर देर इज नो प्रीलिम्स फियर टिल द टर्न ऑफ द ईयर. जब तक 2024 नहीं आएगा आपको लगेगा ही नहीं कि आप प्रीलिम्स से डरो, आपको लगेगा ही नहीं कि प्रीलिम्स सामने है. Then there is a change in the season. The winter is here, at least for North India. And what happens there is that you'd like to sleep more. There is generally more laziness. Some people do fall sick at this time. And finally, weddings and social gatherings and social commitments generally increase at this time of the year. And this becomes a major reason for our low productivity because हमें ये काम करना ही बहुत productive लगता है कि आज मैं उठ के यहाँ चला गया, चलो मैंने कुछ तो किया पूरे दिन में. But let me explain what you're missing. नवंबर, दिसंबर, जनवरी 15 जिसमें से मोस्ट नवंबर जा चुका है. इन टाइम के बाद इन 3 महीने भी नहीं है, दीज आर जस्ट 48 days. आफ्टर दीज 48 days देयर विल बी प्रीलिम्स फीवर, स्पेशली आफ्टर CSE 2023. जिस टाइप का प्रीलिम्स लास्ट ईयर आया था इस बार और ज़्यादा फियर होगा. कोचिंग इंडस्ट्री से और ज़्यादा साइकोसिस आएगा, हमें और ज़्यादा डर लगेगा. तो देयर विल बी प्रीलिम्स फीवर. मिड जनवरी के बाद आप सब छोड़ के प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले हो बिकॉज इट वॉज टफ लास्ट ईयर. द पैटर्न हैज चेंज, दे रिक्वायर एब्सोल्यूट नॉलेज, इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो मिड जनवरी के बाद आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप मेंस के लिए कोई बुक उठा सको. तो ये जो 48 days हैं, शुडंट इवन राइट 3 months, ये जो 48 days हैं, these are the last few days for your mains value addition. And mains is the only paper in which every mark matters. किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ. मेरे मार्क्स आए हैं इस साल 970. जनरल का कट ऑफ था 960. अगर मेरे 11 नंबर कम होते तो मैं लिस्ट में नहीं होता. तो these 10 or 11 marks are the reason I'm in the list. Then the reason and I'm in a pretty good service, right? तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो every mark matters and it can change your destiny. 10 नंबर और आते तो मेरे को IPS टाइप रैंक आ जाती, ऑल्दो इट वाज नॉट माय प्रेफरेंस. 10 नंबर और आते तो IFS लाइक रैंक भी आ सकती थी, राइट? सो एवरी मार्क मैटर्स. इट इज़ नॉट अबाउट द सेम थिंग इन प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है. प्रीलिम्स में आप 99 मार्क्स लेके आओ, 90 मार्क्स लेके आओ, 120 ले आओ, बात सेम है. बट मेंस में एवरी मार्क मैटर्स. और ये 48 डेज आपके लास्ट डेज है मेंस के लिए. जनवरी 15 तक 48 डेज हैं एंड अगर आप इन 48 डेज में अच्छे से मेहनत करो यू कैन ईजिली इंक्रीज योर 10 marks and these 10 marks could be the difference and they were for me. This is also the time when you can do unconventional things. वो कोई big optional की कोई standard book, कोई बड़ी बुक जो आप पढ़ते नहीं थे, या ARC की रिपोर्ट्स, क्वालिटी एनरिचमेंट, ये यही टाइम है करने का. बाद में क्या होगा दैट यू विल फील कि ओके देयर इज अ टाइम प्रेशर, एवरीबडी विल बी स्टडिंग, देयर विल बी शेड्यूल्स, देयर विल बी डेडलाइंस एंड देन यू विल लुक एट स्किपिंग थिंग्स. आप सोचोगे कि यार जो मेजर चीज़ें हैं वो कर लूँ, ये जो छोटी छोटी चीज़ें जिनसे एक एक मार्क यहाँ वहाँ बढ़ता है वो बढ़ाने का टाइम सिर्फ अभी है. ये क्वालिटी एनरिचमेंट का टाइम सिर्फ अभी एग्जिस्ट करता है. इसके बाद दिस टाइम विल गो अवे एंड दिस विल बी द डिफरेंस. ये लाइन ध्यान से पढ़ो. आई एम गोइंग टू पॉज फॉर 2 seconds. जस्ट रीड दिस लाइन. Someone is constantly working to take your dreams away from you. Whatever your dream might be, whatever service, whatever exam you're giving,
whatever your dream is, somebody is working harder than you at this moment. Somebody is not in their phone at this moment and they're studying. And ये fact है life का. And this happens everywhere in every industry because of the competitive nature of the world's most tough exam that you're giving. This is especially true for UPSC aspirants. Someone is constantly working to take your dreams away from you. So every minute that you're wasting is killing you and it is taking your dream away from you. So every minute matters because every mark matters. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से उठो, 12 घंटे पढ़ने का प्लान बना लो, फोन गिव अप कर दो, सोचो कि कल से तो बस मैं 2 टेस्ट रोज लिख लूंगा. बिकॉज यूपीएससी एग्जाम इज एन एग्जाम दैट रिक्वायर्स फेजेस. ये एग्जाम खुद 1 साल का एग्जाम है. इट इज नॉट एन एग्जाम दैट हैपन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन. ये लाइन कई बार बोली है, इट्स बिकम अ क्लीशे नाउ, बट इट्स ट्रू. Right now it demands consistency. It does not demand you to go all out. If you go all out right now, you will go to a burnout. आप burnout हो जाओगे, आपको लगेगा यार क्या चल रहा है. नहीं, but consistency चाहिए. And what does consistency look like in this phase of the exam during November, December, January? 7 hours per day की पढ़ाई, 1 relaxation day in a week. कुछ social commitments आप मत भी छोड़ो and don't cut off from all your friends. ये काम भी करने हैं, फ्रेंड से भी मिलना है, social commitments भी मीट करने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो. 7 to 8 hours a day is something you have to achieve even now. Only those people make it in this exam who make, at least at this time also they're studying 7 to 8 hours a day. मैं आपको एक वीडियो में, पिछली वीडियो में बहुत उस पर बात भी हुई थी. There are a lot of friends that I have who I met in Labasna. उनमें से majority लोग जिनको मैं जानता हूँ, this is not true overall, but majority लोग जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे friends हैं, जो IAS में नहीं है, they are writing the exam again. So that is your competition. ये बात याद रखना. So you cannot spare a single day where you say कि ठीक है मैं नहीं पढ़ता, and it's never a single day. एक आध दिन आप break लो, but it should be planned. होता क्या है कि days on end, weeks on end, we waste our time. So consistency is what is required now. जब prelims से पहले का time होगा, then I will ask you to study 12 hours a day also. But अभी you require consistency. आराम से keep building, but don't leave it. आपने ये देखा होगा, अगर हम एक डे का अनप्लान ब्रेक ले लेते हैं तो उसके जो नेक्स्ट डे होता है वो और भी खराब होता है, उसमें टाइम लगता है वापस आने में. द ब्रेक इज नॉट जस्ट 1 डे, इट इज मल्टीपल डेज. इट टेक्स यू टाइम, भूल जाता है बंदा, यू गेट कट ऑफ. बिकॉज पढ़ाई करना जेन्युइनली मुश्किल है, और अगर आप कोई मुश्किल काम बीच में छोड़ देते हो, देन इट टेक्स टाइम टू गेट बैक टू दैट स्टेट. यू हैव टू टेक अ रिलैक्सेशन डे, बट दिस हैज टू बी अ प्लान्ड रिलैक्सेशन. इट हैज टू बी रिलैक्सेशन दैट गेट्स यू बेटर प्रिपेयर्ड. होता क्या है, हम अभी टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं. दिस हैज टू स्टॉप. नाउ क्या रीजंस हैं कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बात कर चुके हैं इस बारे में. वी वेक अप लेट, हमारा स्लीप साइकिल इज कंप्लीटली मेस्ड अप, वी एंड अप वेस्टिंग द फर्स्ट आवर ऑफ द डे. ये बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली, इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बात करूंगा. फर्स्ट आवर ऑफ द डे इज द मोस्ट क्रूशियल आवर ऑफ योर डे. इसमें ऐड कर लो एंड लास्ट आवर ऑफ द डे. देन देर इज नो कॉन्क्रीट प्लान. हमें पता ही नहीं है हमें अभी करना क्या है, हमने कोई प्लान बना ही नहीं रखा, हमने कुछ सोच ही नहीं रखा, तो कैसे प्रोडक्टिविटी आएगी. कंक्रीट प्लान ही नहीं है. एंड लास्टली कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. बिकॉज प्लान नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पता ही नहीं कि मैंने कुछ अचीव किया नहीं किया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत मस्ती कर ली, कोई कॉन्क्रीट, देर इज नो वे टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, देर इज नो वे टू सेट टारगेट्स, है ही नहीं. तो हमें फील ही नहीं होता कि हमने कुछ खराब किया. बट यू विल ट्रस्ट मी, यू विल रिग्रेट विद अ कैपिटल आर इफ यू वेस्ट योर टाइम राइट नाउ. नो अकाउंटेबिलिटी का एक और मैनिफेस्टेशन है हाई फोन यूजेज, स्पेशली सोशल मीडिया. जिसको ये देखना हो ना कि हाउ सोशल मीडिया टेक्स अवे फ्रॉम यू, वॉच द डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड द सोशल डिलेमा. नेटफ्लिक्स पे है, बहुत ही बढ़िया. इट विल एक्सप्लेन हाउ एडिक्शन इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयड टू एंश्योर कि अपना पूरा टाइम फोन पे लगाते रहो. अब सोल्यूशंस क्या हैं, बहुत मैंने बात कर ली, प्रॉब्लम बता दी, क्या प्रॉब्लम होगी, मैनिफेस्टेशन बता दिया, बट व्हाट इज द सोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, वी वेक अप लेट. देखो, वेकिंग अप लेट का सोल्यूशन ये नहीं है कि आप अलार्म लगा के उठ जाओ, वो तो फिर बहुत आसान है. अलार्म तो रोज लगाते हैं, रोज स्नूज करते हैं. सोल्यूशन क्या है, दैट यू स्लीप ऑन टाइम. ये सोल्यूशन है. एक्चुअली यू नीड 8 आवर्स ऑफ स्लीप, बट वो 8 आवर्स आएगा, आप 3 बजे सोओगे तो आप 9-10 बजे ही फ्रेश फील करोगे, 11 बजे ही फ्रेश फील करोगे, उससे पहले नहीं करोगे. यू हैव टू स्लीप ऑन टाइम एंड आई वुड वांट दैट आई स्लीप 12 to 8. मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी, आई एम ऑल्सो ट्राइंग, एंड माई रिकमेंडेशन ऑल्सो इज दैट यू स्लीप फ्रॉम 12 to 8. अब ये कैसे होगा, इसकी मेन प्रॉब्लम है लेट नाइट फ़ोन यूजेज. रात को हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हम अगर 11:30 फ़ोन उठाते हैं तो पता चलता है कि 3 बजे तक फ़ोन यूज़ कर लिया, पता भी नहीं चला, एंड देन योर डे इज़ गॉन. गिल्ट भी होती है बट कुछ कर नहीं सकते. अब
सोल्यूशन है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? दिस कैन बी योर मॉम, डैड. ये बेस्ट है इफ यू कैन डू दिस. योर सिबलिंग और योर फ्रेंड. उन्हें क्या बोलो? टेल देम दैट टेक द फोन अवे फ्रॉम मी एट 11 PM and don't give it to me at least 1 hour after I wake up. तो 11 PM जब आप सोने वाले हो एंड 8 बजे अगर आप उठ रहे हो तो 9 बजे तक आपको फ़ोन ना दे. एंड अगर आप 8 बजे किसी दिन ना उठो टाइम से तो उस दिन पूरे दिन आपको फ़ोन ना दे. हम लोग इतने एडिक्टेड हैं अपने फ़ोन से, आप अपने आप उठोगे, आप अपने आप सोओगे टाइम पे, अपने आप उठोगे. नाउ दिस अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हैज़ टू बी समबडी क्रेडिबल. इट कैन नॉट बी योर फ्रेंड हु इज़ जस्ट एज नॉन सीरियस एज यू आर, बट कोई सीरियस फ्रेंड है अगर आप ओवरएन वगैरह में रहते हो. एंड बेस्ट है पेरेंट्स. पेरेंट्स को अभी जाके ये बात सीरियसली बोल दो कि मुझे से 11 बजे फ़ोन ले लेना और 9 बजे से पहले मत देना सुबह. वो पक्का मान जाएंगे. कहेंगे क्यों? तो कहना मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई में अड़चन बन रहा है मेरा फ़ोन. 100% दे विल अग्री एंड दे विल implement it. They will be more enthusiastic and they will be proud of you. इसका ये भी एडवांटेज है. So do this. This is the first step. Have an accountability partner and give away your phone. If you give away your phone or any other screen or device that you have, आप जाग ही नहीं पाओगे लंबे टाइम तक. 11 बजे के बाद जागने के लिए कुछ ना कुछ एडिक्टिव चाहिए, नहीं तो नेचुरली बॉडी आपको स्लीप में डाल देगी. सेकेंड थिंग, फर्स्ट आवर ऑफ द डे वी वेस्ट. आपने कितनी बार होते हुए देखा है कि पहले घंटे में हम उठे, हमने फ़ोन पे टाइम लगा दिया, हमने यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट कर दिया एंड देन आवर एंटायर डे इज़ गॉन. लगता है कि यार अब तो क्या ही करना, कल देख लेंगे. वी बिकम लेजी, रज़ाई में ही बैठे रहे, उठे नहीं वगैरह वगैरह. इफ़ यू डू वेल हेयर इन द फर्स्ट आवर ऑफ द डे, योर डे इज़ सॉर्टेड. तो सोल्यूशन क्या है? पहला तो फ़ोन नहीं चाहिए, ये तो इसकी तो बात कर ली. इसके लिए आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए. दूसरा, नो प्लानिंग. प्लान नहीं करना है पहले आवर में उठ के, बिकॉज इससे क्या होता है, आपकी सारी एनर्जी यहीं वेस्ट हो जाती है. यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी इन प्लानिंग कि आज मैं ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा. आपको लगता है यू गेट द फीलिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी बट यू आर नॉट एक्चुअली प्रोडक्टिव एंड देन योर डे गेट्स वेस्टेड. मैंने 1 घंटा प्लान कर लिया, नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक. ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी, बहुत बार हुआ है, तभी मैं बता रहा हूँ. बट देन दिस इज ऑल्सो अ वेस्ट ऑफ टाइम एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे. एट द एंड ऑफ द डे यू कैन डू इट. उसके बारे में बात करेंगे. एक और चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी, डोंट फाइट विद एनीबडी, डोंट डू एनीथिंग नेगेटिव. अगर आपको किसी से लड़ाई भी करनी है, इवन अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से लड़ाई करनी है, पहले घंटे में मत करो. फर्स्ट आवर में यू नीड टू डू समथिंग दैट मेक्स योर मॉर्निंग बेटर, दैट सेट्स यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. उसके बाद कर लेना लड़ाई. नाउ देयर इज अ बुक कॉल्ड मिरेकल मॉर्निंग रूटीन. इस बुक में कुछ रिकमेंडेशंस हैं अबाउट व्हाट टू डू इन द फर्स्ट आवर. उसका कुछ मॉडिफाइड वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ. देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन द फर्स्ट आवर. फर्स्ट इज यू नीड टू हाइड्रेट. अगर आप 8 घंटे सोए, योर बॉडी हैज गॉन 8 hours विदाउट वाटर. So firstly, you need to get water as soon as you wake up. Of course, you'll brush your teeth, etc., etc. Then you need 5 minutes of silence. Now, this could be meditation, but still silence, where you just relax and think about what you're going to do today. But it cannot be more than 5 minutes, and it cannot be planning. It's just silence. And ये meditation हो सकता है, चुप बैठना हो सकता है, जैसे भी आप करो, but try and do this. You need exercise. Exercise not in the sense कि आप जिम चले जाओ. That's great अगर आप जा सकते हो, but I don't think UPSC aspirants के पास ये टाइम है कि वो पहले घंटे में जिम जाएं दिन के. और जा रहे हो तो मेरे हिसाब से बंद कर दो. But exercise in the form of you can do skipping, yoga, and this is only for 10 minutes. Just to get your physical body active. This is for your physical body and this is for your mind. When you get both of these things active, this is done in the first half hour, then at least for 30 minutes read something UPSC related. अगर आप पहले घंटे में दिन के आधा घंटा पढ़ाई कर लेते हो, आपका पूरा दिन सेट हो जाएगा. बिकॉज देन इट विल बी ऑन योर माइंड, यू नो वॉट यूर डूइंग. तो फिर आप आगे भी सेट रहोगे. यू विल नॉट बी सेइंग कि अच्छा यार, जैसे होता है कि मैंने पहला घंटा वेस्ट कर दिया, फिर दूसरा घंटा भी वेस्ट हो रहा है, फिर चलो कल देखेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, टीवी देख लेते हैं वगैरह वगैरह. वो नहीं होगा, बिकॉज दिस विल ब्रिंग योर माइंड बैक टू द एग्जाम. सो ट्राई एंड फॉलो दिस. 3 दिन ये फॉलो करके देखो एंड टेल मी इफ इट मेक्स अ डिफरेंस. कमेंट्स में आके 3 दिन बाद बताना. नेक्स्ट, लास्ट आवर ऑफ द डे. ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. नाउ एक इसमें आपको 2 काम करने हैं. आप इस टाइम पे फ़ोन तो आपके पास है नहीं, दिस इज 11 PM. फ़ोन तो आपने दे दिया, अब 1 घंटा जागना है. क्या करोगे उस 1 घंटे में? इन दिस 1 hour for 30 minutes you can plan. You plan for the next day. You take your time and you think कि कल मैं क्या करूँगा. And if you have done this, then the next day also becomes 1 hour. The next day's first 1 hour becomes good because you know what you're going to do, so you will be active. So what happens here is there is a positive reinforcement cycle. रात को आपने प्लान किया, सुबह आपने एग्जीक्यूट किया, अगेन आपने प्लान किया, अगेन आपने एग्जीक्यूट किया. इट इज अ पॉजिटिव साइकिल. सेकेंड थिंग इज टू रिव्यू व्हाट यू हैव डन. आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इन लबासना ऑल्सो वी आर आस्क्ड टू राइट अ जर्नल एवरी डे, एंड आई डिडंट टेक दिस सीरियसली. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट.
मैंने 2-3 दिन के साथ में भर दिए वगैरह वगैरह, लास्ट डे पे भर दिया, ये कई बार किया है। बट जो जर्नल है जो आपने लवासना में भरना होता है, दे से दैट एवरी डे यू राइट, and this is the habit they are trying to inculcate in young bureaucrats. So this has a meaning. If you review your day, even if it's been an unproductive day and you write about it, you will see what you've done and आपको guilt होगी, and this guilt will have some meaning if you're doing it without your phone. So next day you'll try to be better. This is a source of constant improvement. So last hour of the day, 30 minutes, try to review what you've done. If you don't want to write, just think about what you've done for the day and plan for the next one. 30 minutes here, 30 minutes here. Now you need a concrete plan. अब ये मैं आपको recommend कर देता हूँ. If it is your first attempt in 2024, spend these next few months or these next 48 days doing your weakest subjects, जैसे कि art and culture, science and tech, environment. These are your weakest subjects. इन पे time लगाओ. If you have given prelims before and you gave it with a good preparation, so take time on your optional. This is still the make or break subject in UPSC CSE mains. आप इतना ऑप्शनल पढ़ लो दैट यू आर रेडी ऑन प्रीलिम्स डे. ऑन प्रीलिम्स डे यू आर रेडी कि अच्छा यार आज प्रीलिम्स है, आज मैं बिल्कुल तैयार हूं, अगर आज भी ऑप्शनल का पेपर आ गया ना तो मैं लिख दूंगा. इवन इफ यू आर डूइंग इट फॉर वन पेपर, पेपर 1 अपने ऑप्शनल का तैयार कर लो. इतनी हेल्प होगी ना वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच के जो 3 महीने होते हैं. इट विल चेंज योर लाइफ. मजाक नहीं कर रहा मैं, बिकॉज तब एवरीथिंग हैज प्रेशर. तब आपको लगेगा यार GS4 के लिए तो पता नहीं 8 या 10 दिन है, GS2 के लिए 10 दिन है, ऐसा रहता है. In this time also you need to focus on your optional, ताकि तब वो 3 महीने जो प्री और मेंस के बीच के 3 महीने होंगे उसमें your life becomes easy. And if you have given means this year, अगर आपको बहुत ज़्यादा anxiety है तो you can wait till the results and read the newspaper, and this is normal and it's okay, I understand it. मेरे को भी थी. And if you can, this would be best that you also work on your optional, because आपने मेंस दिया है, मतलब आप प्रीलिम्स क्लियर करके आए हो, तो you will be able to manage this year also. So take time to read the newspaper, or you can wait till the results. I don't think कोई बहुत ज़्यादा टाइम रह गया anyway. Right. Next, how to have accountability. इस पे मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ on how to use the Forest app. Long story short, it's an app with a timer that tracks your phone usage. जब हम डेस्क पे बैठते हैं पढ़ने, our main distraction is again our phone. Right. इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. Forest app क्या है, अगर आप इस पे टाइमर ऑन करते हो और आप पढ़ने बैठ गए, तो मान लो आपने 15 मिनट पढ़ा और उसके बाद आपका मन किया कि चलो अब मैं व्हाट्सएप खोल के देखता हूँ, तो आपका जो टाइमर है ना यहाँ पे वो रुक जाएगा. एंड इट विल टेल यू एन एक्यूरेट टाइम ऑफ हाउ मच यू आर स्टडिंग ऑन एवरी डे. सो यहाँ पे आपको 7 आवर्स निकालने हैं पर डे, एंड देन यू कैन हैव वन रिलैक्सेशन डे एट द एंड ऑफ द वीक. देन यू कैन रिलैक्स ऑन संडे. So about 42 to 45 hours is your minimum time. Minimum 50 would be ideal. 42 to 45 is minimum on the Forest app. इसे कैसे यूज करते हैं, ये ऐप क्या है, go to the description. The first link is about the video on Forest. Then there is a technique called positive procrastination. एक YouTube चैनल है Better Than Yesterday, उसको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, मैंने ये चीज़ वहीं से सीखी है, एंड इट हैज़ वेरी गुड वीडियो. सो इफ़ यू वांट टू वॉच यू कैन वॉच इट. अब उन्होंने क्या आइडिया दिया है इसमें कि देखो कुछ Tier 1 काम है, जैसे कि स्टडिंग या व्हाटएवर आवर वर्क इज, ये सबसे मुश्किल काम होता है हमारा. देन देयर इज सम Tier 2 वर्क, जैसे कि वर्कआउट, क्लीनिंग अ रूम, रीडिंग अ गुड बुक एक्सेट्रा. एंड देन देयर इज सम Tier 3 वर्क विच इज प्योर टाइम वेस्ट, जैसे कि फ़ोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्सेट्रा. एंड यूट्यूब में मैं अपना चैनल भी इंक्लूड कर रहा हूँ. आप अभी भी ये वीडियो देख के प्रोक्रास्टिनेट ही कर रहे हो, इफ इट्स द फर्स्ट आवर ऑफ योर डे और इफ इट्स एनी आवर ऑफ योर डे, राइट. बट ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मेक इट वर्थ योर वाइल. तो देखो Tier 1 जो काम है ये सबसे मुश्किल काम है. हम जब प्रोक्रास्टिनेट करते हैं हम यहाँ से जंप करके सीधा इस काम पे चले जाते हैं कि यार अभी ये करने का मन नहीं कर रहा, चलो मैं फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ, चलो मैं टाइम वेस्ट कर लेता हूँ, यूट्यूब चला लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, वगैरह वगैरह. वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रोक्रास्टिनेट हेयर. एक दिन ये करके देखो कि स्टडिंग ओके इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, मेरा प्रोक्रास्टिनेट करने का मन है तो मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, मैं अपना रूम क्लीन कर लेता हूँ, मैं कुछ और पढ़ लेता हूँ वगैरह. दिस इज ऑल्सो प्रोडक्टिव वर्क, इट इज स्टिल प्रोडक्टिव. So even though you are procrastinating, it is still positive because you are doing productive work. तो अभी मैं आपको कहूंगा कि आप 3 दिन का चैलेंज लेने की कोशिश करो where you do only Tier 2 procrastination. आप पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अगर आप you've been unproductive for the past 7 days, कल आपसे 7 घंटे पढ़ाई नहीं होगी. But when you procrastinate studying, try to go to Tier 2 procrastination, not Tier 1. And this is not extreme. It's not something कि आप बिल्कुल ही कर लोगे, कभी कभी आप फोन भी यूज करोगे, but try and do this. When you are away from study, when you are away from work, do Tier 2 work. इससे क्या होगा एडवांटेज, फर्स्ट
एक तो आप प्रोडक्टिविटी आपकी काफी हाई है बिकॉज इवन टीयर 2 वर्क इज प्रोडक्टिव, एंड सेकंड यू विल गेट बोर्ड सून ऑफ दिस टीयर 2 वर्क, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेट बैक टू टीयर 1 वर्क। प्रॉब्लम क्या है कि टीयर 3 जो है, जो सबसे खराब काम है यूट्यूब वगैरह, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इंस्टाग्राम इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? मन करता है उस पर घंटे घंटे निकालने का, और मैंने भी बर्बाद किए हैं, यू आर नॉट अलोन इन दिस। तो वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है टू स्टडिंग, बट टीयर 2 से वापस आना ईजी है। तो ट्राई दिस फॉर 3 days, ट्राई डूइंग टीयर 2 प्रोक्रेस्टिनेशन, मुझे बताना इफ इट यील्ड्स रिजल्ट्स और नॉट। नाउ इफ यू हैव कम टू दिस टाइम, आपने 20 minutes यहाँ स्पेंड करे हैं मेरे साथ, दैट मीन्स फर्स्टली दिस वाज अ रियल प्रॉब्लम फॉर यू, एंड सेकेंडली यू हैव मोर फोकस देन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। माई रिटेंशन रेट एट द एंड ऑफ 20 minutes is generally 14 to 15%. So firstly congratulations for you. And what is the focus reward? पहले तो मैं आपको कहूँगा you are not alone. I have the same issue right now. मेरे लिए भी प्रोडक्टिव होना मुश्किल है, मेरे को वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट स्कैन करने, मैं उसे कब से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, बट मैं कल कर दूंगा। I'll try my best, हो सकता है कल भी ना हो, but when I'm procrastinating it, I'll go to tier 2 work. So firstly, know that you are not alone in this and I'm with you. Second, give yourself positive reinforcements. ये भी एक टेक्निक है जिसकी बात मैंने पहले नहीं करी, because not everything is for everyone. And अगर आप सीरियस हो, अपने यहाँ तक सुना है, then you deserve to know something extra. Positive reinforcement is when you tell yourself what you're going to do. So positive reinforcement is, I will be productive today. Write this in the comments and shut your phone off. Comments में भी नहीं लिखना तो अपनी नोटबुक में लिख लो, and shut your phone off for today. And देखो what a wonderful day you have after that. If you have a good day today, it will give you reward at the end of the day. आपको सोने के टाइम पे गिल्ट नहीं होगा, आपको हैप्पीनेस होगी, and then that positive feedback loop will start. अभी हम नेगेटिव लूप में फंसे हुए हैं. So if you watched till here, do write this in the comments. In the end, I'd like to say thank you for watching, and I'd want you to read this line again. Someone is constantly working to take your dreams away from you. ये चीज लिख के ना अपनी डेस्क पे लिख लो, right? Paste it in front of your desk. कोई ना कोई है जो आपकी वो सीट लेगा, अल्टीमेटली 1000 ही लोगों को सिलेक्ट होना है, एंड एवरीवन एल्स विल नॉट मेक इट. नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू आर इन दैट होली PDF of 1000 or you're not, and your actions today will define it. Not 1 minute before the exam, not 1 day before the exam, but 6-8 months before the exam. If you are consistent, it will show in your results. That's all for this video. Thank you for watching. See you next time.